مسجد اقصی اور اس سے متعلق عمارتوں کا تعارف۔ عام مسلمان ہوں کہ اہل علم، سب کی نگاہوں سے قبلہ اول کی شناخت مٹتی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگ سنہری گنبد ہی کو قبلہ اول سمجھ بیٹھے ہیں۔ ایک بڑی تعداد ان مسلمانوں کی ہے جنہیں مسجد اقصی اور اس سے ملحقہ مقدس مقامات کا قطعی علم نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو مسجد اقصی اور القدس میں پائے جانے والے مقدس مقامات سے روشناس کرائیں۔ ذیل میں کتاب اقصی کے آنسو اور دیگر کتابوں سے تلخیص کرتے ہوئے مسجد اقصی اور اس سے ملحقہ عمارتوں اور مقدس مقامات کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ حدود حرم میں واقع مسجد کا ہال۔ اس ہال کا طول 600 گز اور عرض 700 گز ہے۔ اس ہال اور برآمدہ کی تعمیر نہایت خوبصورت، پرتکلف اور شاندار ہے۔ چھت جن ستونوں پر کھڑی ہے یہ اعلیٰ قسم کے سنگ مرمر کے ہیں اور ان کے درمیان کی محرابوں اور مسجد کے گنبد کے اندرونی حصے پر نہایت عمدہ نقش و نگار اور طلائی کا کام کیا گیا ہے۔ فصیل مسجد اقصی۔ مسجد کے گرد مضبوط فصیل ہے جو 1600 میٹر لمبی پتھر کی دیوار کی شکل میں ہے۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ مسجد اقصی کی روز اول سے جو حدود تھیں آج بھی وہ اپنی حدود پر قائم ہے، ان میں کمی بیشی نہیں ہوئی۔ مسجد اقصی کا اطلاق اس پورے خطہ پر ہوتا ہے جس کے گرد یہ فصیل موجود ہے، لیکن کبھی اس خاص حصہ کو بھی مسجد اقصی کہہ دیتے ہیں جو اس چار دیواری کے اندر نماز کے لیے مخصوص ہے۔ مسجد اقصی القدس قدیمی شہر کے جنوب مشرقی طرف ایک نہایت وسیع رقبہ جو تقریباً 35 ایکڑ پر مشتمل احاطہ ہے۔ اس احاطہ کے گرد ایک مستطیل شکل کی پرشکوہ فصیل پائی جاتی ہے۔ مسجد کے احاطہ کی وسعت کا اندازہ اس سے کیجیے کہ اس کا رقبہ 44 دونم 1000 مربع ہے۔ اس احاطہ میں گنبد صخرہ اور مسجد اقصی پائی جاتی ہے جس کو الجامع القبلی یعنی قبلہ والی مسجد یا قبلہ طرف والی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد تاریخی آثار و نشانات ہیں جن کی کل تعداد 200 تک پہنچتی ہے۔ مسجد اقصی کا یہ پورا احاطہ شہر کے جس حصے میں واقع ہے وہ ایک ٹیلہ نما جگہ ہے۔ اس ٹیلہ کا تاریخی نام موریہ ہے۔ صخرہ مشرفہ اس احاطہ کی سب سے بلند جگہ ہے اور مسجد اقصی کے اس احاطہ میں قلب کی حیثیت رکھتی ہے۔ مسجد کا یہ احاطہ قدیمی شہر کا چھٹا حصہ بنتا ہے۔ مسجد اقصی کی بابت خاص بات یہ ہے کہ اس مسجد کی حدود آج بھی وہی ہیں جہاں جائے نماز کے طور پر پہلے دن اس کی تعمیر ہوئی تھی، یعنی جس طرح مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع بار بار ہوتی رہی ہے اور اس باعث ان دونوں مسجدوں کے حدود متعدد بار تبدیل ہوئیں، مسجد اقصی کی حدود میں آج تک تبدیلی نہیں آئی۔ دروازے۔ فصیل میں سے اندر داخل ہونے کے 14 دروازے ہیں، ان میں سے 10 دروازے آج بھی زیر استعمال ہیں جبکہ 4 دروازے سلطان صلاح الدین ایوبی نے حفاظتی نقطہ نظر کے تحت بند کرا دیے تھے۔ چند دروازوں کے نام یہ ہیں: باب رحمت، باب حطہ، باب فیصل، باب غوانمہ، باب ناظر، باب حدید، باب قطانیین، باب سلسلہ اور باب مغاربہ۔ مسجد کے آخر میں کشادہ برآمدہ ہے، ہر برآمدے میں 7 دروازے ہیں۔ اس کے آگے وسیع صحن ہے جس میں مختلف چھوٹی چھوٹی عمارتیں ہیں جن میں یادگار کے طور پر تعمیر کیے گئے قبے، چبوترے، اذان کے مینارے، پانی کی سبیلیں، کنویں
मदरसे और मेहराबी दरवाजे हैं। दीवार बुराक ये हरम के जुनूब मगरिब में है। इसकी लंबाई 47 मीटर और बुलंदी 17 मीटर है। रिवायात में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात यहाँ अपनी सवारी को बांधा था। इस मुनासबत से इसे दीवार बुराक कहते हैं। यहाँ मुसलमानों ने हरम की फसील के साथ मस्जिद बुराक के नाम से एक मस्जिद भी तामीर की थी। इसके साथ खानकाह और वक्फ जायदादें भी थीं। यहूदियों ने यहाँ गासिबाना कब्जा करके मकानात गिराने के साथ मस्जिद भी मुनहदिम कर दी और वसी हमवार इहाता को अपनी इबादत के लिए मखसूस कर दिया। वो इस दीवार को हैकल सुलेमानी का बाकी मानदा हिस्सा समझते हैं और यहाँ आकर रोते धोते और दीवार के दरवाजों में दरखास्तें लिख लिख कर रखते हैं। इस दीवार को उन्होंने दीवार गिरिया का नाम दे रखा है और इस पर मिल्कियत का दावा जताते हैं। उनके इस अहमकाना और बेबुनियाद दावे की वजह से फलस्तीनी मुसलमानों के साथ सन 1929 ईस्वी में उनकी इस वक्त जबरदस्त झड़प हुई थी, जब यहाँ सहयूनी झंडा लगाने और मजहबी रसूम अदा करने की वजह से मुसलमानों में इश्तिआल फैला। मुसलमानों ने उनकी यहाँ रखी हुई मेज, कुर्सियां और दीवार में अडस गई पर्चियां निकाल कर फाड़ी। उस वक्त एक कमीशन भी बना था जो तहकीक के बाद सन 1930 ईस्वी में ये फैसला करने पर मजबूर हुआ कि ये दीवार और उसके इर्द गिर्द की जगह मुसलमानों की मिल्कियत है। सुनहरा गुंबद ये मस्जिद अक्सा के सहन में मस्जिद के हाल से 500 मीटर के फासले पर एक ऊंचे चबूतरे पर कायम है। इसको कुब्बतुस सखरा भी कहते हैं। गुंबद सखरा हरम कुदसी की जमीन से 30 मीटर बुलंद है। कुब्बा के माना गुंबद और सखरा के माना के चट्टान के हैं। ये कुब्बा सहन हरम में किसी कदर ऊंची जगह पर मौजूद एक कुदरती चट्टान पर तामीर किया गया है, इसलिए इसे कुब्बतुस सखरा यानी चट्टान का गुंबद कहते हैं। ये इमारत मुसम्मनुल अजला यानी 8 पहलुओं वाली है। इसका हर पहलू 66 फुट तवील है। अंदरूनी कुत्र 192 फुट और कुब्बे के कायदे का कुत्र 66 फुट है। ये कुब्बा 99 फुट बुलंद और लकड़ी का बना हुआ है, जिस पर बाहर की तरफ सोने का रंग चढ़ा हुआ पीतल और शीशा लगाया गया है और अंदर की तरफ से कांच का अस्तर किया गया है, जिसमें खूबसूरत सुनहरे काम और पुरतकल्लुफ आराइश और ज़ीबाइश की गई है। इसकी तामीर का आगाज सन 66 हिजरी मुताबिक 685 ईस्वी में उमवी खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान ने किया और तकमील उसके बेटे वलीद बिन अब्दुल मलिक के हाथों सन 72 हिजरी मुताबिक 691 ईस्वी में हुई। मौजूदा इमारत तुर्की सलातीन सुल्तान अब्दुल हमीद और सुल्तान अब्दुल अजीज के अहद की मुरम्मत करदा है। चुनाचे दीवारों की मिटियाकारी, खूबसूरत रंगीन शीशों की 38 खिड़कियां और अंदाज़े तज़यीन सब मखसूस तुर्की तर्ज का है। इमारत के बाहर चारों तरफ खूबसूरत पत्थरों पर सूरह बनी इसराइल और सूरह यासीन की आयात खत तगरा में दिलफरेब अंदाज में तहरीर की गई हैं। ये आयात सुल्तान अब्दुल हमीद ने तहरीर करवाई थीं। खिड़कियों की बनावट में आला दर्जा की हुस्न तरतीब और बेहतर जालीदार काम को मलहूज रखा गया है। ये किबला एक ऊंचे चबूतरे पर है, जिस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इन सीढ़ियों के इख्तिताम पर मेहराबी दरवाजे हैं, जिनसे एक वसी चबूतरे की इब्तिदा होती है। इस चबूतरे के बीचों बीच ये खूबसूरत कुब्बा कायम है। कुब्बे में अंदर की तरफ सुतून की 2 कतारें हैं। पहली कतार चट्टान के इर्द गिर्द है। इसमें 4 निहायत जखीम और चौड़े और 12 गोल छोटे सुतून हैं। दूसरी कतार जरा फासले पर है। इसमें 8 बड़े और 16 छोटे सुतून हैं। इस तरह अंदरूनी हिस्सा 3 हिस्सों में मुनकसिम हो गया है। पहले में चट्टान रखी है, जबकि दरमियान
दरमियान का हिस्सा सतूनों से घिरा है और तीसरा हिस्सा दरवाजे से मुत्तसिल है। आजकल दरवाजे के साथ मुत्तसिल हिस्से में सब्ज और दरमियान वाले हिस्से में सुर्ख कालीन बिछी है। मुसलमान यहाँ बैठकर तिलावत करते हैं और नमाज पढ़ते हैं। ये कुब्बा जिस कुदरती चट्टान पर कायम है वो इंसान के सीने के बराबर ऊंची, 56 फुट लंबी, 42 फुट चौड़ी और तकरीबन नीम दायरा की गैर मुनज़्ज़म शक्ल में है। ये उसका मशरकी पहलू मिनहिनी और ढलवान और मगरबी पहलू ऊंचा और बुलंद है। ये चट्टान दरअसल यरूशलेम में पाई जाने वाली सुरमई रंग की चट्टानों के सिलसिले का हिस्सा है। इस चट्टान के नीचे एक कुदरती गार है जिसमें तकरीबन 70 आदमी समा सकते हैं। ये गार मुरब्बा शक्ल का है जिसका हर जिला तकरीबन 4.5 मीटर लंबा और छत 3 मीटर ऊंची। छत में तकरीबन 1 मीटर चौड़ा एक शगाफ है। इस गार में 11 सीढ़ियां उतरने के बाद एक मेहराबी दरवाजे के जरिए दाखिल हुआ जाता है। ये मेहराबी दरवाजा संगे मरमर का बना हुआ है। गार के फर्श पर भी संगे मरमर बिछा हुआ है। इस गार में 2 मेहराबें हैं। दाएं तरफ वाली मेहराब के सामने एक चबूतरा है जिसे अवाम मकाम खिजर कहते हैं और शुमाल के चबूतरे को बाबुल खलील कहा जाता है। मस्जिद अक्सा के हाल में पाई जाने वाली मुकद्दसात। मस्जिद के किबले वाली दीवार में एक बड़ा मेहराब है जिसे मेहराब दाऊद कहते हैं, अब मेहराब उमर कहते हैं। मेहराब के साथ एक मिंबर था जिसे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हल्ब से लाए थे। इस मिंबर की उस वक्त पूरे दुनिया में नजीर न थी। 1969 ईस्वी में यहूदियों की तरफ से मस्जिद अक्सा में आग लगाने का जो सानिया पेश आया उसमें इस नायाब मिंबर का अक्सर हिस्सा जल गया। हाल की मगरबी जानिब लूहे का एक जंगला है। इसमें मेहराब मुआविया के नाम से एक मेहराब है। मशरकी जानिब मुस्ततील शक्ल का हिस्सा मस्जिद के दूसरे हिस्से से मुमताज नजर आता है। ये दर हकीकत मस्जिद अक्सा का वो कदीम हिस्सा है जहां हजरत उमर ने पहल मस्जिद तामीर की थी। इस वजह से उसे जामिया उमर कहते हैं। इसमें एक छोटा सा मेहराब है। जामे उमर से शुमाल की तरफ एक खूबसूरत जगह है जिसे ऐवान अजीज कहते हैं। ऐवान अजीज से शुमाली जानिब एक और छोटा सा लेकिन निहायत खूबसूरत मेहराब है, उसे मेहराब ज़करिया कहते हैं। उसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है। इहाता मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा के इहाता का रकबा 144 दूनम यानी 1,44,000 मुरब्बा मीटर बनता है जो कि शहर की पुरानी फसील के अंदर आने वाले कुल रकबा का छठा हिस्सा बनता है। इसके सब अजला एक बराबर नहीं। गरबी जिला 491 मीटर, शर्की 462 मीटर, शुमाली 310 मीटर और जनूबी 281 मीटर। जो भी मस्जिद अक्सा के अहाता में दाखिल हो जाने की सआदत पाले वो उसके अंदर जहां चाहे नमाज पढ़ सकता है। जामे किबली। जामे किबली मस्जिद अक्सा की जनूबी जानिब की इमारत है। मस्जिद का यह हिस्सा ही पूरे अहाता में किबला यानी मक्का की जानिब सबसे पहले आती है। इसी वजह से इसका नाम किबली पड़ गया। ये एक पुरानी इमारत है जिस पर सुरमई रंग का एक गुंबद अरिया जामे किबली में पूरे अहाता मस्जिद के अंदर असल नमाजगाह है। इसके अंदर इमाम खुतबा देने के लिए खड़ा होता है। यही वो असल हाल है जिसमें मर्द 5 वक्त नमाज अदा करते हैं। ये मस्जिद जामिया किबली ऐन उसी जगह तामीर हुई जहां खलीफा दोम उमर इब्न खत्ताब ने फतह बैतुल मुकद्दस के साल 25 हिजरी में नमाज अदा की थी। इस तामीर नौ के सिलसिला में यहाँ एक अजीमुशान इमारत का संगे बुनियाद
उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने रखा था, मगर उसकी तकमील उसके बेटे खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के हाथों हुई। मुसल्ला मरवानी ये जामे किबली के ज़ेरी हिस्सा में वाक़ है। इस जगह की तामीर उमवियों के हाथों हुई, जिसका मकसद अगले हिस्सा तक एक शाही गुजरगाह का इंतजाम करना था, ताकि उमवी महल्लात की जानिब से जो अक्सा के हुदूद के बाहर जनूबी सिंध में हैं से मस्जिद तक पहुँचने के लिए ये गोशा इस्तेमाल में आए। सहन मस्जिद में फैली हुई खूबसूरत इमारतें, मदरसे, हरम कुदसी के शुमाल और मगरब में जो फसील है उसके साथ साथ तवीलो अरीज बरामदे हैं, उनमें निचली और ऊपर की मंजिल में दरसगाहें और तलबा के कमरे थे। उनमें से कुछ को मुख्तलिफ मुसलमान उमरा की बेगमात ने इसाले सवाब के लिए तामीर किया था। उनके साथ मुख्तलिफ छोटे बड़े कमरे भी तलबा की रिहाइश के लिए तामीर किए गए थे। मशहूर मदरसे ये हैं: मदरसा गाजिया, मदरसा करीमिया, मदरसा बास्तिया, मदरसा तुलूनिया, मदरसा उस्मानिया वगैरह। मगरबी बरामदे में मदरसा खातूनिया नाम की दरसगाह के बाहर एक हुजरे में बर्र सगीर के मशहूर खतीब और रहनुमा मौलाना मोहम्मद अली जौहर की कब्र है। कुब्बे तदरीस और जिक्र इबादत के लिए जाए खलवत या तारीखी यादगारों के तौर पर कुब्बे तामीर किए गए थे। उन कुब्बों को मुख्तलिफ हुक्मरानों ने मुख्तलिफ अगराज के तहत तामीर कराया था। इनमें सबसे मशहूर कुब्बा कुब्बतुल मेराज है, जिस पर यहूदी फौजियों की बरसाई गई गोलियों के निशानात मौजूद हैं। ये कुब्बा हजरत के आसमानों पर तशरीफ ले जाने के अजीम वाकया की यादगार में तामीर किया गया था। इसके अलावा कुब्बतुस सिलसिला, अल कुब्बतुन नहविया, कुब्बा यूसुफ और कुब्बतुश शेख खलील भी बहुत मशहूर हैं। चबूतरे ये चबूतरे गर्मियों में नमाज और दर्स तदरीस और इल्मी मुज़ाकरों के लिए तामीर किए गए थे। ये सहन के फर्श से जरा ऊंचे और मुरब्बा मुस्ततील दोनों तरह के होते थे। उन्हें खूबसूरत पत्थरों से तामीर किया जाता था और अक्सर किबले की जानिब मेहराब नुमा दीवारें तामीर की जाती थीं। उनमें ज्यादातर हरम कुदस के मगरबी सहन में वाक़ हैं। ये कुब्बे ज्यादातर उस्मानी दौर में तामीर किए गए। इनकी कुल तादाद 24 है। मशहूर के नाम ये हैं: बसीरी का चबूतरा, करक का चबूतरा, सुल्तान नासिर का चबूतरा। मीनारे बैतुल मकदस में अजान के लिए 4 मीनारे थे जो शुमाल और मगरबी जानिब थे। क्योंकि शहर की आबादी इस तरफ थी, ये चारों मीनार ममालिक के दौर में तामीर किए गए और आज तक दूर से मस्जिद की अलामत के तौर पर देखे जाते हैं। ये मीनारे मस्जिद के 4 दरवाजों के साथ तामीर किए गए थे। इस मुनासबत से उन्हें बाबुल मुगारबा का मीनार, बाबुल सिलसिला का मीनार, बाबुल गवानिमा का मीनार और बाबुल असबात का मीनार कहा जाता है। सबीलें खादिमीन हरम ने नमाजियों और ज़ायरीन की सहूलत के लिए पानी का उम्दा इंतजाम किया था, जिसकी वजह से मस्जिद की हुदूद में जा बजा मीठा और ठंडा पानी कुओं, सबीलों और हौजों में वाफिर मिकदार में पाया जाता था। हरम शरीफ में 25 कुएं थे, जिनमें 17 मस्जिद अक्सा की मरकजी इमारत के करीब और 8 सुनहरी गुंबद वाली इमारत के आस पास थे। 9 सबीलें इसके अलावा थीं। कासुल फुवारा नामी एक खूबसूरत हाउस मस्जिद के मरकजी दरवाजे के बिल्कुल सामने था, जिसे सुल्तान सैफुद्दीन अयूबी ने 589 हिजरी में तामीर कराया था। धूप घड़ियां और तहखाने मस्जिद अक्सा में 2 धूप घड़ियां थीं, एक मस्जिद के बाहर सामने और एक चट्टान वाली गुंबद की दीवार पर। इसके अलावा मस्जिद के मरकजी हाल के नीचे एक तहखाना भी है, जिसे सलीबियों ने अपने कब्जे के दौर में घोड़ों का अस्तबल बना रखा था और उसे अस्तबल सुलेमानी के नाम से पुकारते थे। ये तहखाना सतूनों पर खड़ा है, इसे कदीम अक्सा भी कहते हैं। आखिर दौर में मस्जिद अक्सा के एक कमरे में इस्लामी नवादरात भी रखे गए हैं।